I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to dive into a topic that touches everyone under the sun. Did you know that only about 30% of adults and even fewer children regularly use sunscreen when exposed to sun? With skin problems rates on the rise, understanding the significance of sunscreen is even more crucial than ever. Sunscreen isn't just about preventing sunburns, it's a powerful shield against harmful UV rays that can lead to premature aging, wrinkles, hyperpigmentations, etc., and most importantly, even skin cancer. Yet many of us still have questions about which sunscreen to choose, how often to apply it, and its long-term benefits. That's why we are here to discuss it in detail, in length. Whether you are a skincare enthusiast or just starting to explore the world of sun protection, sunscreens are really important. So let's unlock the secrets of sunscreen. Today we have with us Dr. Jolika Vathani. Dr. Jolika, very warm welcome to you. Am I audible? Yes, of course. Thank you. It's such a pleasure, Dr. Jolika, to have you with us. So, Dr. Jolika Vachani is joining us from Rajkot Live, and she's a distinguished dermatologist and cosmetologist with wealth of expertise, with an MBBS from Krishna Institute of Medical Sciences and DDBL from KLE University. Dr. Vachani has been shaping the field of dermatology for almost a decade now. Her mastery extends across a spectrum of specialities, including anti-aging procedures, dermatosurgery, general dermatology, laser treatments, hair restorations, etc., etc. As the esteemed owner of Crystal Skin Clinic, Dr. Jolika pioneers cutting-edge solutions for all skin, hair, and wellness concerns. She is also the esteemed member of prestigious organizations like IADBL, IMA, CDSI, and CDSR. Dr. Jolika, we are truly honored to have you here today. Your presence adds immense value to our session, and it's such an important day to discuss about sunscreen because we know that in most parts of the India right now it's summers, right? The sun is in its more powerful manner. And still, people are not using sunscreen as a regular thing, as a regular skincare routine thing. And they are asking so many questions about, they have so many doubts about sunscreen. So, to start with, Doctor, first of all, why we need to use sunscreen or wear sunscreen daily, and why we need to make it an integral part of our skincare routine? Thank you so much, Ria, for this wonderful introduction, first thing. And it's a really good question. As in India, the people are not taking good care of their skin. So they are not following the routine habits. They even doesn't know about the routine skin care. So first of all, we have to make that understand that skin is the largest organ of our body. And the first thing જે બી પર્સન તમને મળશે સામે એ ફર્સ્ટ તમારી સ્કિન જોશે બરાબર તો it is a bitter truth કે external appearance is more important nowadays, but yeah, we have to any normal routine life માં બી આપણે કોઈ બી even આપણે બી કોઈ બી જગ્યાએ just શોપિંગ કરવા ગયા છીએ, બે પર્સન ઊભા છે, આપણે એને જ કહેશું કે જે આપણને આઉટર લુકમાં પ્રોપર લાગતું હશે, દેખાશે કે હા કે આ પર્સન આપણને એવું સાઉન્ડ કરશે કે હા આની પાસેથી આપણને આન્સર્સ મળશે. ઇટ ઇઝ અ bitter truth, but it is truth. So first of all, as a skin is the largest organ, આપણે એની ટેક કેર કરવી જોઈએ અને ડેઈલી રૂટીનમાં સ્કિન કેરમાં સનસ્ક્રીન ઇઝ અ મસ્ટ. અને અત્યારે તો ઇન્ડિયામાં ઇટ ઇઝ અ ટુ હાઈ, ટેમ્પરેચર ઘણું હાઈ છે, તો સનસ્ક્રીન તો આપણે પહેલા લગાવવું જ જોઈએ ટુ પ્રોટેક્ટ આર સ્કિન. क्योंकि सनस्क्रीन से क्या होता है, इट मेक्स वन लेयर टू योर स्किन कि सन रेज डायरेक्टली स्किन को टच नहीं करते और स्किन प्रोटेक्टेड रहती है. तो जो सन रेज की वजह से हमारा स्किन डैमेज बढ़ता जाता है डे बाय डे, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इवन कुछ डिजीजेस होते हैं उसके प्रिवेंशन के लिए भी सनस्क्रीन वर्क करता है. तो सनस्क्रीन इज रियली मस्ट टू अप्लाई. ओके, so
अब अगर हम घर पे भी है तो भी सनस्क्रीन लगाना है, बाहर भी है तो भी सनस्क्रीन लगाना है, तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। मेरा अगला सवाल ये था डॉक्टर जोनिका कि कई बार ये होता है और आपने भी बहुत ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और आई डोंट गो आउट मच और माय एक्सपोजर अंडर द सन इज नॉट दैट मच, तो मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं? वर्क फ्रॉम होम है, घर में है, क्या जरूरत है? तो चूंकि आपने ये बात उठाई है, सो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू इवन अप्लाई सनस्क्रीन व्हेन वी आर अंडर आवर होम्स और ऑफिसेस एक्सेट्रा? Yeah, of course, of course. Because I'll explain you the sun rays. There are three types of sun rays: UVA rays, UVB rays, and UVC. So C rays, ultraviolet C rays already ozone layer से block हो जाता है, तो वो अर्थ तक इतना नहीं आता. The second, UVA and UVB rays. UVB rays has a minimal side effects. It just causes erythema and burning to your skin. But UVA rays are more harmful. Why? And because it causes aging, स्किन कैंसर कैन कॉज, इवन हमारी स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, इवन हमारी स्किन में जो दाग मेलाज्मा हम जिसको बोलते हैं, तो वो आना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ यूवी ए रेज. तो यूवी ए रेज इज मोर हार्मफुल. ओके, एंड द अदर थिंग्स, अल्ट्रावायलेट एंड द ब्लू लाइट जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन से, टीवी स्क्रीन से, इवन ब्राइट लाइट्स जो होती है ऑफिस में या हमारे क्लिनिक्स में, तो दैट यूवी रेज आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल. तो उससे कंटिन्यू स्किन डैमेज होती ही रहती है. एंड यूवी ए रेज है जो विंडो, अगर हम प्रोटेक्टेड घर में बैठे हैं तो विंडो के ग्लासेस थ्रू में पास होती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स कंटिन्यूअस रहते हैं. तो वो प्रिवेंट करने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना जरूरी है. इवन जो हम गैजेट्स के ऑफिस वर्क करते हैं उन लोगों को भी स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, तो वो ब्लू रेज कंटिन्यूअसली स्किन को डैमेज करता है, आईज को डैमेज करता है, तो वो प्रोटेक्शन चाहिए. सन प्रोटेक्शन इज मस्ट. बिल्कुल, तो इसीलिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर गृहिणी हैं, होम मेकर हैं, घर पर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, सनस्क्रीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू यू. तो प्लीज यूज सनस्क्रीन डेली, रेगुलरली. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. Doctor, whenever we go out to purchase or buy a sunscreen for us, there are so many informations on the box, right? कि SPF कितना है, बूट रेटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम एसपीएफ, क्योंकि एसपीएफ को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा एसपीएफ लेना है, जितना ज्यादा एसपीएफ लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा क्या? एक मॉडरेट जो हमारे देश का जो एक टेम्परेचर है उसमें कितने तक का सनस्क्रीन गुड इनफ है, और क्या होता है एसपीएफ? या एसपीएफ बेसिकली क्या होता है? एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर. सन प्रोटेक्शन फैक्टर मतलब कितना सन रेज आता है और हमारी स्किन को कितने टाइम में डैमेज करता है. सिंपली हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? फॉर एग्जाम्पल एसपीएफ, हमने सनलाइट में गए हैं, 5 मिनट्स के बाद हमारा स्किन जो है वो रेडनेस शो कर रहा है या हमें जलन होना स्टार्ट हो रहा है, तो दैट 5 मिनट्स में जितना डैमेज हुआ हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट करने के लिए इफ वी आर अप्लाइंग एसपीएफ 30, तो एसपीएफ 30 we have to multiply with the 5 minutes that duration कि जिसमें हमारा स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो गया, तो इज इक्वल टू 150. सो हमारा एसपीएफ 30 हमें 150 मिनट्स तक प्रोटेक्शन दे रहा है. तो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एसपीएफ. एंड एसपीएफ जो है बेसिकली यूवीबी रेज का प्रोटेक्शन का फैक्टर है. तो यूवीबी रेज जो हमारी स्किन को रेडनेस, बर्निंग, वो सब कॉज करता है, वो प्रोटेक्ट करता है एसपीएफ. तो एटलीस्ट अगर हम रूटीन में घर के अंदर ही काम कर रहे हैं तो एसपीएफ 15 इज इनफ. बट हमारा वर्क ऐसा है कि हम गैजेट्स यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर ब्लू इंफ्रारेड लाइट्स और ब्लू लाइट्स हमारी स्किन पे पड़ती है, घर के अंदर है, तो एसपीएफ 30 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अगर बाहर का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, हम धूप में जाते हैं, ट्रैवलिंग मार्केटिंग का जॉब है, धूप में जाना ही पड़ता है, तो SPF 30 to 50 इज रिक्वायर्ड. बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, वाटर एक्टिविटी में जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए उस टाइम पे स्वेटिंग ज़्यादा होता है, तो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, वाटर रेजिस्टेंट है, SPF 30 to 40 हमें रिक्वायर्ड है, तो ज़्यादा SPF का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. अदरवाइज बेसिक इज SPF 15 इज इनफ. बट अभी समर है, इट इज अ वेरी हॉट समर, so better we use SPF 30 right now
for routine days, you can use SPF 50. ओके तो एसपीएफ को लेकर आपने बहुत क्लैरिटी हमें दे दी है। वही बहुत और भी इंफॉर्मेशन बॉक्सेस पे होते हैं जब हम सनस्क्रीन लेने जाते हैं, लाइक रेटिंग क्या है, स्टार रेटिंग या Yeah. पीए रेटिंग क्या है, व्हाट आर दीज डॉक्टर? Yeah. So what is SPF? I told that is only for the SPF. Sorry, sun UV rays B. Okay. Boot star rating and the PA factor protection against the UVA rays is for the UVA rays. PA factor and the boot star rating, all these two are for the UVA rays. So UVA rays के protection का factor जो है वो at least PA rating 4 है, 5 है. They are really good. But at least PA rating 3 होना जरूरी है. Okay. Boot star rating is a UK based rating, and this PA rating is Japan based protection, UVA protection rating. So this both are the factors we need to see when, especially when your skin having melasma or any photodermatosis, because these are aggravated due to the UVA rays. So we have to apply the sunscreen which contains UVA protection also. Right. Whenever we talk about sunscreen, we get to hear so many things about it, that it's not only important to use sunscreen regularly, religiously, but you need to reapply it also. The amount of sunscreen that you are applying is equally important. So we would like you to shed some more light on that. The amount of sunscreen to be applied, or reapplication, why it's so important, when to reapply, doctor. So whenever you are applying sunscreen, ideally every 2 hourly or 3 hourly, you should repeat the sunscreen. Okay, whatever, whether you are working, not working, or whether you are at home or outside at the sunlight, that time also you have to repeat your sunscreen every 2 to 3 hourly. And if you have any skin problems like melasma or any photo aggravated diseases, or you are on a photosensitive medications, that time you have to apply every 2 hourly. So repetition is increased, so that you have to repeatedly apply. And in that case, ऐसा जरूरी नहीं है कि every time आपको face wash करना है and then reapply करना है. You can directly reapply. There is no issue. Okay. And the second question you have asked about the The what type quantity. quantity. Yeah, quantity you have asked. So when we are applying the sunscreen, it should be adequate. It should make a single layer all over your skin. So for the face and neck, you require 2-finger unit. So there are two methods. One is fingertip unit method and one is tablespoon method. Okay. So 1 tablespoon is equal to 3 ml and 2-finger units is equal to 3 ml. So at least 3 ml you require for the whole face, neck, behind your ears and over the ears. So at least 3 ml is required. And for the hands exposed part also, you at least required 6 ml of your sunscreen over the exposed part, over the hands, over the legs also. So each and every exposed area should be covered whenever you are going out to the sun. Right. So it's important to cover all your exposed areas with sunscreen, adequate amount of sunscreen, right kind of sunscreen. And of course, a dermatologist, a qualified dermatologist can help you find the best sunscreen for you. So in case you have doubt, please go and approach your dermat. He or she will definitely help you out with that. Now, doctor, because there are so many types of sunscreen, first of all, we would like to know about the types of sunscreen that's available, because if I'm right, then there are physical, chemical, mineral, so many types of sunscreen. So what are these, and who should, apply which kind of sunscreen? So there are mainly 4 types of sunscreen: physical sunscreen, chemical sunscreen, one is mixed hybrid sunscreen, and one is oral sunscreen. So physical sunscreen contains zinc oxide, titanium dioxide, and how it works: when we are applying over the skin, it reflects the sunlight. Okay, skin light directly वहाँ से reflect हो जाती है. So it physically provides the sun protection. Second is a chemical sunscreen. Chemical sunscreen contains avobenzone, octimethoxycinnamate, pedimate, everything.
and many more chemicals. So what they does, that absorb the skin, they absorb the sunlight, करते हैं और उसके बाद वो एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मोस्टली काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास कि दे आर सेइंग कि मैम सनस्क्रीन लगाते हैं उसके बाद स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो जो एनर्जी सनलाइट का एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से स्वेटिंग होता है. So these are the mainly two types. One is mixed sunscreen, which is a broad spectrum sunscreen which contains all the ingredients, physical as well as the chemical. And one is oral sunscreen. Oral sunscreens contains mainly this polypodium leucotomus, beta carotene, vitamin A, vitamin C. So what it does, it is one type of antioxidant. जो सनलाइट से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज होता है, सन डैमेज जो क्रिएट होता है, जो सेल्स बर्न आउट होता है, वो प्रिवेंट करता है सिस्टमिकली. वो टैबलेट्स आते हैं दैट वी कैन टेक डेली. बिल्कुल. तो ये अलग अलग टाइप ऑफ सनस्क्रीन है और आपने बताया कि कौन किस तरह की सनस्क्रीन यूज कर सकता है. जैसे कि आपने कहा कुछ लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन लगा के बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत गर्म लगता है स्किन पे. वैसे ही बहुत दूसरी कंपनीज भी सनस्क्रीन को लेकर होते हैं और जिसकी वजह से बहुत से लोग सनस्क्रीन को रेगुलरली यूज नहीं करते. कुछ लोगों का कहना है कि इट मेक्स माई स्किन वेरी डल, इट मेक्स माई स्किन लुक वेरी पैची, आई डोंट लाइक दी वाइट कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसे लोग जो इन सब वजहों से सनस्क्रीन रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे डॉक्टर? या मार्केट में काफी सनस्क्रीन अवेलेबल है. जेल बेस्ड सनस्क्रीन होता है, क्रीम बेस्ड, लोशन बेस्ड, वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड. देयर आर वेरियस थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो आपको कोई भी सनस्क्रीन चूज करना है तो प्रेफर फर्स्ट यू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट. जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाओ, वो आपका स्किन टाइप असेस करेगा कि भाई आपका ऑयली स्किन है, ड्राई है, मिक्स्ड है, और आपका रूटीन कैसा है, आपका सन एक्सपोजर कितना है, विच टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू विल रिक्वायर टू प्रोटेक्ट योर स्किन. तो वो सब असेस करने के बाद दे विल गाइड यू द प्रॉपर सनस्क्रीन. सो बेटर डायरेक्टली फार्मेसी या किसी शॉप में से जाके यू आर बाइंग एनीथिंग. So skin is the largest organ, and if we are taking proper care, sunscreen is daily routine. डेली रूटीन के लिए ऐसा प्रोडक्ट यूज करो क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक यूज करना है. इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने यूज किया, ट्राई करते हैं, चलो कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज विल टेक द अनदर वन. सो डोंट डू दैट. First, meet your dermatologist, and then, according to their advice, you can choose your preferred sunscreen. बिल्कुल. Hit and trial मत कीजिए. Skin is after all, as doctor has said, is the largest organ of our body. And हमारे अंदर जो भी चलता है ना वो हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है. बाहर जो भी चल रहा है उसका भी असर स्किन पे पड़ता है. तो स्किन बहुत ज्यादा टॉर्चर एनीवेज झेल रहे हैं, उस पर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके आप उसको और ज्यादा टॉर्चर न दें. एक डर्मैट के पास जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा सनस्क्रीन चूज करने में. सनस्क्रीन चूज कीजिए, रेगुलरली रिलीजियसली उसे लगाइए, रीएप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन दैट यू आर अप्लाई, इन सब का ध्यान रखिए. इट विल रियली हेल्प यू. और कहते भी है ना डॉक्टर कि एक बार अगर आपको आपके स्किन के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से सनस्क्रीन मिल जाए तो वो एक वंडर, एक मैजिक क्रीम की तरह वर्क करता है. यू विल स्टार्ट लविंग इट. और क्या यही वजह है डॉक्टर कि सनस्क्रीन को एंटी एजिंग की क्रीम भी कई लोग कहते हैं, कई डॉक्टर्स कहते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम भी है? Yes, yes, true. You are really true. Because क्या होता है, सन के डैमेज की वजह से हमारे स्किन में काफी चेंजेस आता है. इट इज नॉट ओनली द टैनिंग कि भाई सन में हम गए तो सिर्फ टैनिंग हो रहा है. हम अगर रूटीन में भी हमारा स्किन ऑब्जर्व करें तो काफी, आई कैन से मोर देन 80% जिनका स्किन का फेस का टेक्सचर, उनका कलर सब चेंज होगा देन द इंटरनल बॉडी एरिया. जैसे हम बैक का या चेस्ट का स्किन देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट है, पिगमेंटेशन नहीं है, इवन स्किन है. और फेस का स्किन में अनइवन टोन होगा, टेक्सचर थोड़ा बम्पी होगा, इवन जूरिया पड़ गई है. सो दिस इज ऑल बिकॉज की सन डैमेज इज देयर. पर रूटीन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि हम तो सन में जाते ही नहीं है, हम तो बाहर का वर्क इतना होता ही नहीं है, सन का एक्सपोजर होता ही नहीं है. बट स्टिल sunlight, not only the sunlight but each and every screen और जहाँ से भी light आता है, that all everything
damages to your skin. तो सनस्क्रीन तो लगाना ही है हमें। बिल्कुल, ये वही बात है जो हमने शुरुआत में भी कही थी कि Yeah, अगर आप जहाँ है वहां लाइट है, yeah, वो चाहे नेचुरल लाइट हो, वो चाहे एलईडी की लाइट हो, वो चाहे आपकी लैपटॉप की या मोबाइल के स्क्रीन की लाइट हो, आप रेडिएशन रेज जो निकल रहे हैं उससे आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है। तो अनलेस एंड अनटिल आप अंधेरे में रहते हैं, आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो yeah, ये बॉटम लाइन है। अच्छा yeah. डॉक्टर, जिनके एक्ने होते हैं या एक्ने प्रोन स्किन है, वो सनस्क्रीन यूज करने से कई बार हिचकते हैं। उनको लगता है कि ऑलरेडी इतने एक्ने है, उसको हम क्यों लेयर अप करें सनस्क्रीन से। एक्ने पेशेंट जो है उनको भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए क्या? Yeah, yeah, of course. They can also use the sunscreen. They should use because acne की वजह से PIH post inflammatory pigmentation बोलते हैं, दाग रह जाते हैं। तो सन में जब भी जाते हैं वो सनलाइट की वजह से ज़्यादा एग्रीवेट होता है, तो सनस्क्रीन उनको भी ज़रूरी है। बट सनस्क्रीन के काफ़ी टाइप होते हैं, क्रीम होता है, लोशन, एज आई बिफोर मैंने आपको बताया है। तो वो लोग वाटर बेस्ड है, जेल बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ओके। उससे आपका स्किन ज़्यादा स्टिकी नहीं रहेगा, तो ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस नहीं रहेंगे। राइट। और ऐसे ही बच्चों की अगर हम बात करें, टॉडलर्स की अगर हम बात करें, एंड ऑफ कोर्स खास तौर पे एक स्टेज के बाद जब वो बहुत ज्यादा खेलने कूदने लगते हैं, उनका एक्सपोजर अंडर द सन बहुत होता है और टैनिंग भी बच्चों में बहुत होती है, ऐसे में किस तरह का सनस्क्रीन बच्चों पर यूज कर सकते हैं? Physical sunscreen are the best for the kids, and according to the guidelines 2 years के above सारे kids को sunscreen की जरूरत रहती है, और 2 years के above we should start applying the sunscreen. Basically हम 2 to 6 years को कैलामाइन लोशन विच एक्ट एज अ फिजिकल सनस्क्रीन वो देते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और आफ्टर एज ऑफ 6 वी आर गिविंग द फिजिकल सनस्क्रीन विच कंटेन जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सो दैट दे कैन यूज। और बच्चों के लिए तो ज्यादा जरूरी है सनस्क्रीन, बिकॉज उनमें वियर एंड टेयर ज्यादा होता है, उनका सन एक्सपोजर हमारे से ज्यादा होता है। और राइट। स्पोर्ट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो स्वेटिंग भी ज़्यादा रहता है, और स्वेटिंग की वजह से स्किन, स्वेटिंग में काफ़ी यूरिया अमोनिया जैसे कुछ होता है, एसिड, माइल्ड एसिड्स होते हैं, जो स्किन को पिगमेंटेशन भी उसके ज़्यादा होता है, और बिल्ड ऑफ भी रहती है, उनका ड्राई स्किन रहता है, तो सन डैमेज ज़्यादा होगा, तो उनको तो सनस्क्रीन लगाना ही है। बिल्कुल, तो बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। Nowadays there are so many sunscreens available in various formulations. We have spray based, gel based, हाँ, cream based, etc etc. तो ये हम कैसे चूज करें? जेल बेस्ड भी है, क्रीम भी है, स्प्रे भी है, कि हमें क्या यूज करना है? तो बेसिकली क्या होता है कि आपका स्किन टाइप के हिसाब से होता है। इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन, बट आपको कैसे जज करना है कि आपका स्किन ऑयली है, ड्राई है, मिक्स्ड है, सो उसके लिए मैं आई जस्ट गिव यू द वन ट्रिक। जस्ट वॉश योर फेस। वॉश करने के बाद अगर 30 मिनट्स के बाद आप ऑब्जर्व करते हो स्किन को और वो ऑयली है, ठीक है, तो योर स्किन टाइप इज ऑयली। इफ इट इज नॉर्मल देन योर स्किन इज नॉर्मल। और इफ इट इज इट बिकम्स फ्लैक्सी और ड्राई और आपको थोड़ा इचिंग फील होता है, देन योर स्किन इज ड्राई। So according to the skin type you choose, like if your skin is very dry, you can use a cream based sunscreen, and if your skin is very oily, you can use water based or the gel based sunscreen. ओके। According to that you can choose, even for the body parts also. If even over the hands you want to apply the sunscreen, you can use a lotion base, so the spreadability will be good and you can cover the large area in a few minutes, because वो भी एक हेडेक रहता है बच्चों को भी और इवन हमें भी, कि या क्या एवरी 3 hours to apply and इतना टाइम बिगड़ता है, we don't have a time. So lotion based sunscreen, the spray based sunscreen are the good options that they can apply easily. Even अभी तो काफी even sunscreen sticks are available. So if that they can use, कि भाई reapplication में काफी efforts लगते हैं कि भाई reapplication का time नहीं मिलता, तो morning में अगर आपने sunscreen proper sunscreen लगाया है तो reapplication के लिए you can use the sunscreen sticks, so that you can use, वो काफी easy रहती है apply करने। राइट। अच्छा, मेकअप के साथ सनस्क्रीन किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करें, यूज करें, ये भी लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। या
course, मेकअप के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू क्लींस योर फेस, then you can apply the sunscreen or the first there are few routine cares that first you need to clean your face and apply the moisturizer, then over that you have to apply the sunscreen, and then over that you can apply your makeup. But right nowadays makeup also containing some SPF, but which is not adequate. So along with the makeup, I suggest use proper amount of sunscreen first, and some sunscreen act as a primer also. So that is good. Your makeup product may you save the more makeup products. ज़्यादा makeup product की use नहीं होगा. So that is also benefit. And the second thing, जो sunscreen makeup product में आता है, that is not adequate. So it is better to use sunscreen along with the makeup. राइट, सो यू नीड स्टैंडअलोन सनस्क्रीन, भले ही मेकअप प्रोडक्ट्स में आपके सनस्क्रीन पैकर हो, लेकिन फिर भी ये भी आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर की सनस्क्रीन एक तरफ हम देखते हैं कई लोग फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो भी यूज करते हैं, दे यूज स्कार्फ, हैट्स, कैप्स, सनग्लासेस एक्सेट्रा। तो व्हाट इज द राइट वे? क्या वो भी हेल्प करता है सन से प्रोटेक्शन में? क्या बिना सनस्क्रीन यूज किए हम फिजिकल बैरियर्स इस तरह के यूज कर सकते हैं? व्हाट्स द राइट वे? नहीं, आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही है, दैट इज मस्ट. एंड इफ यू आर एनी एज 2 years से अबव, जैसे हमने पहले बात किया, 2 years से अबव सनस्क्रीन लेयर लगाना है, दैट इज मस्ट. सेकेंड, हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हैं जो हम हेड यूज करते हैं, हेड से प्रोटेक्शन देते हैं, सनग्लासेस से प्रोटेक्शन कर सकते हैं हमारा स्किन. यू कैन वियर द स्कार्फ, और व्हेन यू आर गोइंग आउट यू कैन वियर द ग्लव्स. ओके, सो दैट इज मस्ट. एंड जो हैट होता है उनका भी प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि एटलीस्ट ब्रॉड ब्रीम वाला हैट लेना चाहिए. ब्रॉड ब्रीम मतलब एटलीस्ट इफ यू हैव टेकन 10 centimeter का ब्रीम लिया है तो इट विल प्रोटेक्ट यू टिल योर फेस. एंड इफ यू हैव टेकन 20 centimeter brim area, it will protect your neck also. So whatever, if you are using the physical barrier also, that time also you need to apply the sunscreen. It is must. Sunscreen is must. राइट, तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है और इस पर हमने बहुत बात की है. कई हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर हमने बात की है तो मैं उन्हें नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है. सोनिया हमारे साथ में, उनका क्वेश्चन है, हाई ऑफन शुड आई रिप्लेस माय सनस्क्रीन बॉटल? तो एक्सपायरी डेट देख के रिप्लेस कर दे या पूरा यूज कर ले, क्या करे डॉक्टर? Expiry date देखना ही है. And if you are using proper amount of the sunscreen, as I said, at least 3 ml sunscreen you are requiring for the face, and if you are applying daily, okay, so not only the face, all the exposed area you need to cover it with the sunscreen. So at least you need 30 ml of sunscreen daily. Okay, so there is the, if you are using in a correct method, there is no need कि भाई अभी replace कब करना है, बॉटल बचेगा ही नहीं. बॉटल में बचा ही नहीं होगा. राइट राइट, तो इसीलिए अगर आप रेगुलरली यूज करेंगे, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इस तरह से बॉटल्स बचे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ रेगुलरली यूज करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक और हमारे साथ है मीनल वर्मा, हमारे ऑडियंस ने पूछा है, आर देयर स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स दैट आई शुड अवॉइड इन सनस्क्रीन ड्यू टू पोटेंशियल स्किन रिएक्शन और हेल्थ कंसर्न्स? कोई ऐसी चीज जो देख ले कि अच्छा इससे दिक्कत हो सकती है तो अवॉइड करें. Yeah, true. If your skin is very sensitive, you can choose a sunscreen which is water based or gel based. And still, if your means कुछ कंटेंट्स ऐसे आते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करते काफी टाइम, जैसे डायमेथिकॉन है या कुछ नोप्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, या सबकी एलर्जेंस डिफरेंट होता है. कुछ को even some people get allergic to aloe vera also. So we need to find out that particular thing कि हमें किन से एलर्जी हो रही है, and according to that your dermatologist will guide you कि कौन सा sunscreen better है आपके लिए. Right. Pooja is with us. Her question is, should I use a separate sunscreen for my face and my body, or can I use one product for both my face and body? No, because what is your skin texture, even skin anatomy is different than the body. Okay, हमारा हाथ पैर का जो स्किन रहता है that is different than our face. Even face में भी T-zone जो रहता है that is different than the other part of the face. So better
you choose a different, because कभी कभी क्या होता है कि जिनका स्किन ऑयली रहता है या जिनका स्किन ज़्यादा एक्ने प्रोन है, तो उनको हम लाइट, वेरी लाइट जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन देते हैं और लोशन बेस्ड सनस्क्रीन देता है। और बॉडी में है दैट रिक्वायर्ड कंप्लीट प्रोटेक्शन, और बॉडी में इफ यू आर अप्लाइंग SPF 50 क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन, दैट इज गुड इनफ टू गिव यू 5 to 6 hour प्रोटेक्शन। सो ऑलवेज बॉडी का सनस्क्रीन अलग रहता है, फेस का सनस्क्रीन अलग रहता है। Right. Doctor, before we sum up this Insta Live, any take-home message for our viewers? कोई ऐसी बात जो छूट गई हो या as a message आप देना चाहें हमारे viewers को? Yeah, of course. This is basically what I am seeing nowadays as a dermatologist. लोग काफी कुछ जैसे PDL पिगमेंटेशन है फेस पे, हम पिगमेंट डिमार्केशन लाइन बोलते हैं, काफी लोगों को होता है बट दे आर नॉट ऑब्जर्विंग दैट। इवन काफी टाइम के बाद मेलाज्मा, दाज जो बोलते हैं, वो लेके आते हैं। काफी ऐसे डिजीज है जो सनलाइट प्रोटेक्शन से, जो हम सनस्क्रीन डेली लगाते हैं उससे मिट सकते हैं। ये दे डोंट नीड टू गो एन ट्रीटमेंट पार्ट। तो डेली अगर हम लगाते हैं और उससे एंटी एजिंग का भी काम होता है, ग्लो भी बढ़ता है, यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी अदर थिंग ऑल्सो, so why not to just apply a sunscreen daily। तो उसको एक रूटीन में फिक्स कर देना चाहिए और एक आदत बन जाएगी ना, तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट विद इन 2-3 मंथ्स। सिर्फ एक सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो 2-3 मंथ्स में जो सन की वजह से डैमेजेस हो रहे हैं आपके स्किन में, वो काफी रिड्यूस हो जाएंगे। तो द ओनली सनस्क्रीन कैन मेंटेन योर ग्लो। तो नो नीड टू, जब भी ऐसा तो नहीं है हम रोज ब्रश करते हैं, एवरी डे वी आर डूइंग द ब्रश, बट स्टिल ऐसे तो नहीं कि जब भी हमारा टीथ सड़ गया उस टाइम पे हमने ब्रश किया स्टार्ट किया। तो फिर स्किन के लिए कैसा, जब भी झुर्रियाँ आ जाए, जब भी दाग आ जाए, उसी टाइम वी आर स्टार्ट की हाँ अभी अब कुछ करना पड़ेगा, अभी तो दवाई लेना पड़ेगा, अभी किसी को दिखाना पड़ेगा। Sunscreen is a basic thing that you can apply daily. So it is a small effort that you can take, which can take you on a very good side कि भाई आपको काफी डिजीजेस से प्रिवेंशन मिलता है। कैंसर के रेट काफी कम है इंडिया में, बट स्टिल सनस्क्रीन इवन आप स्टार्ट कर रहे हो तो हम स्किन कैंसर से भी लड़ सकते हैं। तो व्हाई नॉट दिस, यू एवरीवन हैव टू अप्लाई द सनस्क्रीन। बिल्कुल, अगर हम एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत दूसरे अपने स्किन केयर ट्रीटमेंट्स पे या मेडिसिन पे इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा। सो प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन, apply it regularly, religiously, and follow what Dr. Jolika has just said. Thank you so very much, Dr. Jolika. It was wonderful talking to you. बहुत informative हमारा ये सेशन आपने बना दिया। Thank you so very much. Thank you so much. So thank you, Dr. And viewers, thank you for participating in today's session. Stay connected to our beautiful, spotless skin page. Thank you. Goodbye. Have a great day ahead. Goodbye. Goodbye.